Hello everyone, this is Professor Sana Ansari, and today we are going to discuss about a new topic, and here I am going to make this video on the basis of my viewers demand. So let's start our today's topic, that is nothing but right to equality. Friends, I would like to inform you this is a very important topic as per your exam point of view. If you are doing FY BCom semester 2, FY BMS, FY BAF, anything. So this topic is very much important for the foundation course subject, that is nothing but equality. And in this video we'll be learn about right to equality, and whatever the rights comes under the equality will deal with in this video. And friends, I would like to inform you this topic will cover all your objectives part. It means I can say one or two MCQs can be based on the right to equality. It can come in your short notes wala part, and apart from the short notes and objectives, I can say it can be come for the long answers too. Okay, so let's start our today's topic, friends. So here I just want to inform you that the right to equality will cover all the all the five articles here. As you can see on my screen, you can see that the right to under the right to equality you can, and we have to just read article 15, article 15, article 14, article 16, article 17, and article 18. Okay? So all these rights here we have to learn. So let's start. First of all, friends, I just want to share some details related to our topic, right to equality. Right to equality is a very important part. As an Indian citizen, we have a many rights. That we have a right to choose, right to hear, right to redressal, right to take a constitutional remedies, and we have other rights too. Like we can say we have human rights, like basic needs, right to healthy environment, right to take a education related to the product, and we have right to speak in expressions too. So this is nothing but what we are going to learn in this video. So right to equality is elaborated in five articles under our constitution, which will be cover article 14 to article 18 in our constitution. Okay, so as you can see on my screen, just read this. Right to equality is an important right under the constitution. It is elaborated in five articles, article 14 to 18, as I have discussed with you. 18 of the constitution deal with the different but related aspects of equality. It is the principal foundation of all other rights and liberties. सो यहाँ पर इसके कहने का मतलब ये है कि जो आर्टिकल 15 है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे एलॉबरेट किया है इन बिटवीन फाइव आर्टिकल्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम आर्टिकल 14 एंड एंड्स ऑन आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पर ये जो सारे पांच आर्टिकल्स आप देख रहे हैं, ये सारे आर्टिकल्स जो है राइट टू इक्वालिटी पे ही बेस्ड है, बट इनके जो कॉन्सेप्ट्स है वो डिफरेंट है, बट इट्स अल्टीमेटली रिलेट्स विद द एस्पेक्ट्स ऑफ इक्वालिटी. Okay, so let's start with Article 14. We have many times heard about the Article 14 is nothing but a right to equality. So under Article 14, equality before law. Many of the time we heard this. ठीक है? So under Article 14 of the Constitution guarantees to all citizens of India equality before law or equal protection of the laws of the country. इसका मतलब ये हुआ friends, ये जो आर्टिकल्स होते हैं या जो इक्वालिटी है, ठीक है, सो बेसिकली आपका जो आर्टिकल 14 ये कहता है कि जो भी लॉ है, जो भी कानून बनाया गया है, इट इज़ इक्वल फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स. ठीक है. The enforcement of law, rules and regulations must be in accordance with the principles of equality before law and must free from any of the arbitrariness. ये हुआ कि यहाँ पर जो भी रूल्स बनाए गए, जो भी रेगुलेशंस बनाए गए, इट इज़ मस्ट बी अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी. मतलब जो इक्वालिटी के जो प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब जो आप कानून देखते हो, ठीक है, सो यहाँ पर यू शुड फर्स्ट गिव प्रायोरिटी टू द इक्वालिटी बिफोर द लॉ. ठीक है, एंड लॉ शुड ऑल्सो
एज इन अकॉर्डेंस, यानी जो मैंने अभी बताया कि जो भी लॉ है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो अकॉर्डेंस टू द इक्वालिटी होते हैं। यही कहता है हमारा राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14। ठीक है, ये चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी याद रखनी है। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है इक्वल प्रोटेक्शन अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस। मतलब आप प्रोटेक्शन दे रहे हो बट कास्ट कम्युनिटी के अकॉर्डिंगली सर्कमस्टेंसेस को अलग करते जाओगे, चेंज करते जाओगे, डिफर करते जाओगे। सो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होगा इन द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ द पीपल एंड द एंड देयर क्लास। सो इसी की वजह से इक्वल प्रोटेक्शन का यहाँ पर जो आर्टिकल 14 है, इसका मीनिंग ये बता रहा है हमें कि इक्वल प्रोटेक्शन का मतलब होता है इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द इक्वल सर्कमस्टेंसेस फॉर ऑल द सिटीजन्स विद इन द इंडिया। Okay, so this is what we called article 14. So here we have article 15. So article 15 किससे relates है? article 15 relates with the social equality and equal access to public areas. अब जो public areas होते हैं वहाँ पर हर किसी को irrespective of their caste, creed और religion यहाँ पर equal access के rights है। जैसे कि आप देखोगे पहले के लोग जो होते थे कि अगर कोई बाथिंग घाट्स है, कोई temples है, so वहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा discrimination करते थे कि आप upper class and community से belong करते हैं तो only you people have a rights to enter into the temple and the public place, parks, museums, gardens and bathing ghats and all, and drinking water well जो होता था वहाँ पर भी। बट जो आर्टिकल 15 है वो हमें ये कहता है कि इक्वल एक्सेस वी शुड प्रोवाइड, और स्टेट शुड प्रोवाइड, स्टेट शाल cannot be discriminate people on the basis of their caste, creed or religion, to provide the equal access into the public areas like gardens, museums, parks, bathing wells and ghats and wells. ओके, सो आर्टिकल 15 में भी बेसिकली इसको भी डिवाइड किया, जैसे आर्टिकल 14 को डिवाइड किया गया था उसी तरीके से आर्टिकल 15 को भी यहाँ पे डिवाइड किया गया है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो 4 क्लॉज में इसको डिवाइड किया गया। पहला क्लॉज कहता है आर्टिकल 15 अंडर सेक्शन 1, सो ये कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, मतलब कास्ट क्रीड के बेसिस पे किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहता है। सो ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 15 अंडर सेक्शन 1। देखिए आर्टिकल 15 अंडर सेक्शन 2 क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट एवरी पर्सन शैल हैव अ इक्वल एक्सेस इन पब्लिक प्लेस। पहले तो हमने देखा कि किसी भी सिटीज़न के साथ हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है उनके कास्ट क्रीड, रिलीजन या फिर उनके जेंडर को लेके या प्लेस ऑफ बर्थ को लेके। बट आर्टिकल 15 अंडर सेक्शन 2 कहता है कि किसी भी पर्सन के साथ हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है कि पब्लिक एरियाज़ में वो एंटर नहीं कर सकते और अपर क्लास एंड कम्युनिटी एंटर कर सकता है। तो ये कहता है आपका आर्टिकल 15(2). देन वी हैव आर्टिकल 15 अंडर सेक्शन 3। आर्टिकल 15 अंडर सेक्शन 3 कहता है स्टेट में मेक एनी स्पेशल प्रोविजंस इन फेवर्स ऑफ वुमेन। मतलब आर्टिकल 15 जो 3 है ना वो जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब इन फेवर ऑफ या फिर डिसीजन मस्ट बी इन फेवर ऑफ वुमेन्स एंड द चिल्ड्रंस, बिकॉज ये हमारे सोसाइटी के बहुत ही वल्नरेबल ग्रुप का एक पार्ट है वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस। तो इनके साथ कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना, इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाया है। सो ये सारे आते हैं अंडर द आर्टिकल 15 सबसेक्शन 3 जो स्पेशली बनाया गया है फॉर द प्रोटेक्शन एंड एनकरेजमेंट ऑफ देयर एडवांसमेंट। किसका एडवांसमेंट? चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स का। नाउ आर्टिकल 15 अंडर सेक्शन 4 आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए स्पेशली फॉर द एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लास पीपल के लिए, विच इज़ नथिंग बट कॉल्ड एज स्केड्यूल्ड कास्ट एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके, नाउ सो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास आज आर्टिकल 16 इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। हमने पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ देखा आर्टिकल 14, फिर हमने देखा यहाँ पर सोशल इक्वालिटी देखा जो इक्वल एक्सेस के लिए था पब्लिक एरियाज का आर्टिकल 15। नाउ वी हैव आर्टिकल 16 विच इज़ नथिंग बट रिलेटेड टू द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सो यहाँ पर भी इसको नॉर्मली हमारा जो आर्टिकल 16 है इसको 5 क्लॉजेज में डिवाइड किया गया है। पहला क्लॉज कहता है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं इनके लिए इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है।
ये कहता है अंडर सेक्शन 1। अंडर सेक्शन 2 क्या कहता है आर्टिकल 16 कि नो डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट क्रीड। पहले तो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है। दूसरा आर्टिकल कहता है कि कास्ट क्रीड रिलीजन प्लेस ऑफ वर्क जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ना करते हुए आपको लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। वी आर नॉट सपोज टू डिस्क्रिमिनेट द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट क्रीड रिलीजन एंड देयर डेट ऑफ बर्थ, देयर प्लेस ऑफ बर्थ, एंड वी कैन से एंड देयर gender. Then we have article 16 under section 3 domicile employment opportunities। एरिया के हिसाब से उनके एक्नॉलेजमेंट, उनके नॉलेज, उनके प्रेफरेंसेस, उनके एक्सपीरियंस और पर्टिकुलरली एरिया। डोमिसाइल का मतलब हुआ कि किसी का पर्टिकुलरली एरिया और लोकेशन के अकॉर्डिंगली जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है उसका हक दिया जाता है लोगों को आर्टिकल 16 अंडर सेक्शन 3 के द्वारा। नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल 16 अंडर सेक्शन 4 पोस्ट फॉर बैकवर्ड क्लास पीपल। जैसे रिसेंटली आई हैव डिस्कस्ड विद यू अबाउट द बैकवर्ड क्लास पीपल, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास पीपल, विच इज़ नथिंग बट कॉल्ड एज स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स। ये हमारी सोसाइटी के बहुत ही पिछड़े हुए लोग होते हैं, ऐसा लोग कंसिडर करते थे, बट नाउ अ डेज दे आर ऑल्सो गेटिंग equal opportunities. And in addition, I just want to share with you people, in the Lok Sabha and the Rajya Sabha, seats are reserved for the scheduled caste, scheduled tribes and women's also, and for the women's also। ठीक है। सो आर्टिकल 16 अंडर सेक्शन 4 जो है स्पेशली बनाया गया है पोस्ट फॉर द बैकवर्ड क्लास पीपल के लिए। देन वी हैव अनदर आर्टिकल दैट इज आर्टिकल 17 अबलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अबलिशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्क्रैप कर देना, किसी भी चीज़ को स्टॉप कर देना। सो अनटचेबिलिटी को स्टॉप करने के लिए आर्टिकल बनाया गया था विच इज़ स्पेशली नथिंग बट कॉल्ड आर्टिकल 17। फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। यू शुड रिमेंबर द आर्टिकल 17, इट इज़ अल्टीमेटली रिलेटेड विद द अनटचेबिलिटी विदाउट एनी अंडर क्लॉज ऑफ आर्टिकल्स। मतलब कोई भी क्लॉजेज नहीं है, दिस इज द only one and single we can say। So article 17 of the constitution abolishes the practice of untouchability। ठीक है। और जो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब जो लोग, और इसके लिए एक्ट भी बनाया गया है विच इज़ नथिंग बट 1955 में एक्ट बनाया गया था, अनटचेबिलिटी एक्ट 1955। इन केस ऑफ एनी पर्सन हु फील्स द समवन लाइक, तो बेसिकली जो आर्टिकल जो 17 है ये अनटचेबिलिटी को स्टॉप करने के लिए बनाया गया है। और अपार्ट फ्रॉम द आर्टिकल 17 वी हैव एक्ट 1955 विच इज़ अल्टीमेटली रिलेट्स विद द अनटचेबिलिटी एक्ट। इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे पेनल्टीज चार्ज की जाएगी अगर आप किसी के साथ अनटचेबल फील करते हो, किसी को टेम्पल्स वर्शिप प्लेस में जाने के लिए रोकते हो, उनको अनटचेबल फील करते हो। सो एक्ट 1955 के तहत यहाँ पे पेनल्टीज चार्ज की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट वन, आर्टिकल 18 अबलिशन ऑफ टाइटल्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखोगे तो बेसिकली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने यहाँ पर एक एरिस्टोक्रेटिक क्लास वाइज एक क्रिएशन किया था अमंग द पीपल, और टाइटल दिया गया था लोगों को राय बहादुर एंड खान बहादुर के नाम पे, जिससे वो लोग लोगों के बीच में, ब्रिटिश गवर्नमेंट लोगों के बीच में क्या करती थी, एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती थी लोगों के बीच में, इंडियन पीपल के, विद इन द इंडियन पीपल, राय बहादुर एंड खान बहादुर के टाइटल से। सो टाइटल को अबॉलिश किया गया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 18। सो क्योंकि ऐसा होता था ना, जब टाइटल लोगों को होता था, टाइटल की वजह से लोग प्रिविलेज एंजॉय करते थे, डिस्टिंक्शन करते थे सोसाइटी में। सो इस वजह से टाइटल को अबॉलिश किया गया था अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 18। सो दिस इज नथिंग बट ऑल द आर्टिकल्स विच वी डील इन दिस वीडियो, विच इज स्टार्ट्स फ्रॉम द आर्टिकल 14 and ends on article 18 according to the equality, right to equality। Friends, this is very 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 important topic। So here we have completed this topic here। If anybody have any doubt and difficulty, so kindly make a comment on my YouTube channel। That's all enough for today, friends। Bye bye, have a nice day, take care।